Hello and welcome back to the channel. So in this channel, I am making videos relating to the previous year questions from UGC NET, and it is also beneficial for other exams like DU entrance exam for LLM, CLAT, PG, CUET, PG for law. So in this video, I will be discussing the part one of the PYQs of 2022. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द PYQs फ्रॉम 2018, 19, 20 एंड 21. इन वीडियोस में आई डू दैट कि I discuss what is the pattern. I give you tips and tricks. I give you advice regarding, and I also regarding the questions of the PYQs, and I also tell you that how I am going to tackle that particular question so that you can have a bird eye view. So yes, we will be moving on to the question now. So this is the very first question from the jurisprudence itself, और ये बहुत ही easy question है. And I have already told in the earlier videos कि jurisprudence का हमें कौन कौन से part को master करना है, and this is one of those parts. जैसे कि sources, सारे schools, ownership, possession, rights and duties. So these are the important parts. So the question is, who said that there are two elements of possession? First is corpus possessors, and second is animus domini. तो कॉर्पस पोजेशंस का मतलब होता है द फिजिकल कंट्रोल और एक्चुअल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, एंड एनिमस डोमिनाई का मतलब होता है द इंटेंशन. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक फोन खरीदा है तो आपके ऊपर उस फोन का एक्चुअल पोजीशन भी है, फिजिकल कंट्रोल भी है, वो आपके हाथ में भी है. देन यू आल्सो हैव द बिल फॉर दैट फोन, तो दैट इज द एनिमस डोमिनाई. तो इन दोनों को मिलाकर ही ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है पोजीशन के, ये बोला था Seven ने, and I have already discussed this in the earlier videos. So I think this is what I just want I need to explain in this question. So we will move on and take the next question. Another very straightforward question from jurisprudence. हम सबको ही पता है कि HLA Hart was the jurist in the analytical school. ठीक है, तो उनका मेजर वर्क है एक concept of law which I have explained. So the question is, there's two statement given, so we will read and check what is correct and which one is incorrect. So the first one is, Hart deals with primary rules of obligation and secondary rules of recognition. B, Hart has nothing to do with the reformulation of analytical positivism, which is not correct. So the answer to this question is that only statement one is correct and two is incorrect. और इसके अलावा I have also explained beside the question. You can go through this, and I think I have explained. So we will be taking next question. Okay, so this is the question from intellectual property rights, जिसका एक पार्ट है ट्रेड सीक्रेट्स. सो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, बट टू जस्ट टू रीड द क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन है, एंड दिस कैन बी रिपीटेड. सो द क्वेश्चन इज, ट्रेड सीक्रेट डू नॉट कवर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. कमर्शियल वैल्यूएबल इज कवर्ड. Production methods, what are the particular methods for the production of a particular thing? Just for example, I have written Coke's formula, Coca-Cola formula, which is there. It has some secrets. So it is what is the method of production, what kind of ingredient they are mixing. तो ये सारी चीजें important है. So yes, production methods are also covered. Third is the business plan. So business plan is also something which is related to trade secret, क्योंकि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या मार्केटिंग टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या फाइनेंशियल टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं. So these are important and part and parcel of trade. So these are also covered. But the last thing, that is information discovered by reverse engineering, is not covered under the Trade Secrets Act. रिवर्स इंजीनियरिंग जिन लोगों को नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. रिवर्स इंजीनियरिंग उसको कहते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एप्पल का आईफोन खरीदा. अब उस कंपनी ने क्या किया, उसका एक एक पार्ट खोल कर देखा कि भाई ये कौन सा पार्ट कहाँ फिक्स है, कैसे बना है. तो किसी प्रोडक्ट को खरीद कर उसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने को हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं. और उसके बाद उस रिवर्स इंजीनियरिंग को करके अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको वो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हमने पहले अच्छे से रिसर्च कर ली कि आईफोन को कैसे बनाया, कौन सा पार्ट किस प्रकार से बनाया है. उसके बाद हमने सेम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की. दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग. सो आई होप आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. सो वी विल बी मूविंग ऑन एंड टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, now this is the question from constitutional law. ये repeat question है, दो तीन बार repeat हो चुका है. If you have gone through my videos from 2018, 19, 20 and 21, you will definitely find this question. तो मैं इसको explain नहीं करूंगा. बहुत ही simple question है कि Article 13 of the Constitution of India do not apply to, and the answer is any amendment of the Constitution made under Article 368. ओके एंड दिस इज ड्रॉन फ्रॉम केशवनंदा भारती, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स. बस मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने एडवाइस, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता हूँ, मैं एडवाइस देता हूँ कि यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी लैंडमार्क जजमेंट, एंड देयर आर सम स्पेसिफिक सेक्शंस व्हिच यू शुड बी गोइंग थ्रू डीपली, और जो आपको अपने बीएलएलबी के दौरान भी बहुत डीपली पढ़ाए जाते हैं, जो सिलेबस है बेसिकली, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पूरा पढ़ना है. उसके बाद सीएम, गवर्नर एंड ऑल, एंड आर्टिकल 368, आर्टिकल related to commissions like finance commission है, national commission for OBC. So this is the advice which I want to give, and all the landmark judgments like Keshwananda Bharati, Golaknath, Shankari Prasad, and Doctrine of Waiver, Doctrine of Eclipse, anything which is related to this, so you should read and go through. So we will be taking the next question. Okay, this is another question from constitutional law, which is very very straightforward. बहुत ही सीधा और आसान क्वेश्चन पूछा है. Emergency provisions are one of those provisions which should be by heart on your fingertips. So the question is, under which article of the Constitution of India it is the duty of the Union to protect every state against the external aggression and internal disturbance, and to ensure that government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India. And the answer to this question is that this is Article 355. तो बहुत ही straightforward question है, तो इसमें nothing to explain. I will be moving on and taking the next question. Another very important question from constitutional law, बहुत ही straightforward question है, and one of the toughest question from the गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, विच इज दियर, जीएसटी काउंसिल विच इज दियर, जिसकी हर साल आप सुनते हैं कि मीटिंग होती रहती है. सो दैट्स व्हाई सम फैक्ट्स आई हैव रिटन alongside the explanation. The question is, every decision of the goods and services tax council shall require it to be taken at a meeting. तो उस मीटिंग में क्या कोरम होगी, ठीक है. तो दिस इज गिवन अंडर सेक्शन टू, अंडर आर्टिकल 279A clause 9 of the Constitution of India, that by a majority of not less than 2/3 of the weighted votes of all the members of the council. ठीक है, 2/3, एक मेजोरिटी के 2/3 वोट होने चाहिए प्रेजेंट एट द काउंसिल. सो जब ही एक मीटिंग में हम डिसीजन ले सकते हैं. बहुत ही सिंपल इजी, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है. तो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. अनदर इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि एक माइनर एक्ट है. इसमें से कम ही सवाल पूछे जाते हैं, तो ज्यादा कुछ है नहीं. एंड आई हैव गिवन द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन असाइड, एंड आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन. सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 फैक्ट फाइंडिंग एक्शन. ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं. सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ बिट आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चन, ठीक है. मेजरली लैंग्वेज वाले पार्ट से कम, बहुत ही कम सवाल बनाए हैं, ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में. और ये शायद 2018, 19, 20, 21, 22 में पहला सवाल पूछा गया है रिलेटेड टू लैंग्वेज. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट 75% पार्ट में से सिर्फ 25% क्वेश्चन आते हैं. तो ये एक मेजर हार्ड क्वेश्चन है. बट स्टिल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सा आर्टिकल में डिफाइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जा चुका है कई बार, तो ये तो आपको पता होना चाहिए. सो इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन. सामने सामने क्वेश्चन और सामने के सामने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है. बस जो एडवाइस मेरे को देनी थी, दैट आई हैव गिवन टू यू. सो नथिंग टू एक्सप्लेन, जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस आर्टिकल, क्योंकि रिपीट हो सकता है. और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, उस आर्टिकल को आप देख लेना, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड ऑल आर मेंशन्ड. So we will be taking the next question. Another important question from constitutional law which needs some explanation. तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ordinarily a delegated legislation can be given. अब हम पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है, बहुत ही ब्रीफ में. तो जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, तो उसके पास पावर है टू मेक द लॉज. बट
हर चीज से रिलेटेड लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकती। मान लो अगर किसी चीज को एग्जीक्यूट कराना है तो उससे रिलेटेड हर चीज पे हम सदन पे पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं बना सकती, तो वो कुछ पावर्स अपनी डेलीगेट कर देती है। मतलब एक सबॉर्डिनेट बॉडी को डेलीगेट कर देती है कि इसको एनफोर्स कराने के लिए एक बड़ा लॉ तो पार्लियामेंट में बन गया, अब उसको एनफोर्स कराने के लिए जो छोटे लॉज और बाय लॉज चाहिए, तो वो बनाने की पावर पार्लियामेंट या फिर कोई भी बड़ी बॉडी यानी कि सुपीरियर बॉडी एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर देती है, एक छोटी बॉडी को पावर दे देती है कि आप इस टॉपिक पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप लॉज बाय लॉज या रूल्स या रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जब एक फुल फ्लेश्ड बॉडी अपनी कुछ पावर्स को डेलीगेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मैंने बताया लेजिस्लेशन की पावर, तो उसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बट अमूमन एक जनरल प्रिंसिपल है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब भी की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स के लिए की जाती है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का अगर आपको नहीं पता, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि मतलब आने वाले फ्यूचर में एक्शंस के लिए, ठीक है। पास्ट एक्शन यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव एक्शंस के लिए कोई भी बायलॉ या फिर वो बनाने की अमूमन जनरली पावर डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस में नहीं दी जाती है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्ट जरूरत है उस चीज की, वरना एक्सेप्शनल केसेस में ही दी जाती है, जनरली नहीं दी जाती है। तो इस केस में तो ऑर्डिनरली ही पूछा है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था ना, क्वेश्चन की बाउंड्री होती है, आपको उससे बाहर नहीं जाना होता। तो यहाँ पर पहला शब्द जो है ना, ऑर्डिनरली, यानी कि जनरल स्पेसिफिकली की तो बात ही नहीं करी है उन्होंने, एक्सेप्शन की बात ही नहीं की है, ऑर्डिनरली ये सवाल पूछा है, तो इसलिए इस शब्द पे भी हमें गौर देने की जरूरत है। दैट इज ऑर्डिनरली अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी गिवन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता जनरली, बोध भी नहीं हो सकता। और चौथा तो जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है, कोड का लेजिस्लेशन से कोई ऑर्डिनरी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से या फिर लेजिस्लेटिव पावर से कोर्ट अमूमन उसमें हस्तक्षेप करने से बचता है, और उसके पास पावर भी नहीं होती है। दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, हमारे पास लेजिस्लेचर है, हमारे पास जुडिशरी है, तो ये लेजिस्लेचर की पावर में फॉल करता है, तो इसका आंसर 4 भी नहीं हो सकता। आई होप आई हैव एक्सप्लेन इट इन वेरी मच डिटेल, so we will be taking the next question. Okay, so this is an important question which you need to note down, ठीक है। अपनी नोट, आई होप मेरी आपने पहली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको पेन एंड पेपर एंड एवरीथिंग शुड बी रेडी, और मैंने उसमें बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, 13-14 पॉइंट्स दिए हैं। जब भी आप मेरे इन पीवाईक्यूज को देखेंगे या कोई भी पीवाईक्यूज को इन जनरली देखेंगे, तो आपको वो लेके बैठना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ऑल फोर आर द लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको नोट डाउन करने हैं। और अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो ये आपके नोटबुक में ऑलरेडी होंगे, जो कि नहीं है इसमें एक ही जजमेंट है, दैट इज एमएच हॉसकोट, विच केस इज रिलेटेड टू the case in which a legal aid is held to be a fundamental right under Article 21 of the Constitution. आई होप ये आप नोट डाउन कर लेंगे, और ये एक याद करने वाली चीज है। एंड you already know that revision is the key to remembrance, so that why I'm making this whole series. So I will be taking the next question now. Okay, so what here we are discussing is very important, which is given under Article 19(2). Article 19 subclause 2 deals with the exceptions to the to our right to to our right to speech and expression, ठीक है। उसमें कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम सारे डील नहीं करेंगे, जो इस क्वेश्चन की नीड है हम वी विल बी डीलिंग दैट द हिकलिन टेस्ट अंडर आर्टिकल 19 subclause 2 is related to, and it is related to decency and morality. I need to explain the concept. हिकलिन्स टेस्ट क्या है? हिकलिन्स टेस्ट ये कहता है कि ये बहुत ब्रिटिश इरा के टाइम का टेस्ट है कि अगर किसी चीज में थोड़ी सी भी एक्सप्लिसिट कंटेंट है, ठीक है, थोड़ा सा भी कोई ऐसा कंटेंट है, तो उसको हम फ्रीडम ऑफ it falls under Article 92, that is exception to the rule of freedom of speech and expression. बट ये बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव टेस्ट था, विच इज नॉट नाउ यूज्ड इन इंडिया ऑल्सो। क्योंकि इस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या, मान लो अगर कोई नॉवेल है, उसमें कुछ एक कोई एनक्रिप्ट है, एक पेज है जिसपे कोई एक्सप्लिसिट सीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था, उस पूरी नॉवेल को ही डिस्कार्ड कर दिया जाता था, उसकी कोई वैल्यू और नहीं देखी जाती थी, मतलब ओवरऑल वैल्यू उसकी नहीं देखी जाती, नहीं चेक की जाती थी, ठीक है। बट दिस इज वेरी कंजर्वेटिव टेस्ट, ये ब्रिटिश इरा के टाइम का टेस्ट था।
And in Ranjit Udeshi versus State of Maharashtra, we have now adopted a different test, that is community standard test. इस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से उस सीन को या उस फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई मूवी है, तो उस मूवी में कोई एक्सप्लिसिट सीन है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इसका पूरी जो मूवी का प्लॉट है उससे कोई लेना देना है। जैसे कि मान लो मूवी बहुत, या उस पर्टिकुलर सीन का क्या जरूरत थी उस पर्टिकुलर मूवी में, या फिर उस पर्टिकुलर जगह में जरूरत थी, क्या वो आर्ट से रिलेटेड है। उसके अलावा हम इस कम्युनिटी स्टैंडर्ड, उसको हम बोलते हैं कि हम चेक करेंगे कि कोई ओवर सेंसिटिव आदमी को बुरा लग रहा है उससे नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बंदा, एक स्टैंडर्ड जो बंदा है, जो जिसके पास मतलब सोचने समझने की शक्ति है, वो उसको देखेगा। अगर उसको वो एक्सप्लिसिट लग रहा है, जैसे सेंसर बोर्ड होता है, तो सेंसर बोर्ड इस चीज को देखता है कि वहां पर एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका एक पर्टिकुलर सोचने समझने का तरीका होता है, उन लोगों को उस जगह बिठाया जाता है। और अगर उनको लगता है कि किसी मूवी में बेवजह ही कोई एक्सप्लिसिट सीन डाल रखा है, उसका उसकी स्टोरी से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो जस्ट वो फन डाल रखा है, और वो इस नेचर का है कि कोई एक आम इन्फ्लुएंस का बंदा या फिर आम सोच रखने वाला बंदा उससे मतलब उसको ऑफेंसिव फील होगा, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है हिकल्स टेस्ट की तरह कि बस सीन आ गया तो उसको, एक्सप्लिसिट सीन है तो बस उस कुछ चेक नहीं करना, उसको बिल्कुल हटा देना है। तो आई होप मैंने ये दोनों टेस्ट बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। बाकी यू कैन ऑल्सो गो एंड सर्च ऑन गूगल फॉर द एग्जाम्पल्स। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर हालांकि दे दिए हैं, बट एक बार और अपने आप से आप क्लियर करने के लिए you can go through. So this is an important question which you should remember. So we will be taking the next question. ओके, आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये तो वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज मेनली एम्बॉडीड इन, दैट इज आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे टैकल करता हूँ। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम आईपीआर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब इसको देखो, पढ़ो, जब आप ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। पहला है प्रोड्यूसर इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इंक्लूड्स द पर्सन हु प्रोड्यूसेस द गुड्स, दिस इज फाइन, मेकिंग सेंस। प्रोड्यूसर इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इंक्लूड्स द पर्सन हु पैकेजेस such goods, this is also correct. It is also making sense. The third thing is producer in case of natural goods includes the person who exploits such goods. This is also correct, falling, making perfect sense. Last thing, you read each and every word. Producer in case of handicraft. So what handicraft has to do with the Geographical Indication Act? In toto तो नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं इसका कुछ लेना देना हो, but in purview of this question, it is not making sense that in case of handicrafts, ठीक है, so includes the person who packages such goods, the person who packages such goods, और handicrafts की बात हो रही है, तो ये दो पॉइंट है, these are not making sense, ठीक है। So the correct answer is that it is not included in the geographical indication act that producer in case of handicrafts, क्योंकि ऊपर आप देखो एग्रीकल्चरल गुड्स की बात होती है, नेचुरल गुड्स की बात हो रही है, और जोग्राफिकल इंडिकेशन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो यू विल हैव अ पॉइंट that it deals with natural goods or agricultural goods. So handicraft, it does not deal with handicraft. So easily आप डिड्यूस करके थोड़ा सा आपको उस एक्ट की अगर थोड़ी सी भी लीगल पता है, लीगल रीजनिंग की वो किस पे बेस्ड है, तो यू विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आईपीआर और कॉमन सेंस और लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा कोई वो नहीं है, बस आपको एक थोरो एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए लीगल रीजनिंग का कि क्या हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क, एक ट्रेडमार्क के तौर पे क्या चीज रजिस्टर हो सकती है। मार्क डिवॉइड ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, तो ये तो पढ़ के ही आपको अटपटा लग रहा है कि ये तो नहीं होना चाहिए। ए अ डिस्टिंक्ट मार्क, तो जब ऊपर वाला अटपटा लग रहा है तो दूसरा वाला तो परफेक्ट सेंस मेक कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा आप पढ़ोगे तो बहुत ही इजी है। अब मार्क कॉजिंग कंफ्यूजन नहीं हो सकता। ओवल शेप फॉर मेडिकल टैबलेट, आउट ऑफ द ब्लू है, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो बहुत इजीली आप दूसरा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। और इसमें कोई ज्यादा मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसके एक्सपर्ट ही हो, बट एक लॉजिकल और लीगल रीजनिंग
जो हमें ड्यूरिंग आवर जर्नी ऑफ एलएलबी डेवलप हो जाती है, तो उससे आप इसको इजीली यू कैन आंसर। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ओनरशिप एंड पोजीशन, बहुत ही इजी है, एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है। रटने वाला रिमेम्बरेंस वाली चीज है। दैट प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, ये किसने बोला था? दिस इज बाय हॉलैंड। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल एनीथिंग मोर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कई बार पहले भी दी है, तो इट इज अ रीइटरेशन। आई एम जस्ट गोइंग टू रीइटरेट दैट थिंग कि देखो, जूरिस्ट स्कूल्स तो आपको मैंने बता दिया, 25-30 जूरिस्ट पढ़ने हैं, उनकी बातें पढ़नी है, वो आपको मोर और लेस समझ में आने लगेगा, क्योंकि जूरिस्ट जब कोई बात स्कूल से रिलेटेड कर रहा होगा, तो आपको उस स्कूल का एक पर्टिकुलर सेंट्रल आइडिया है, तो उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। उसके ज्यादा बाहर जाने की वो कोशिश नहीं कर रहा होगा, तो वो इजीली समझ में आने लगेगा। बट क्या है कि कस्टम से, या फिर सोर्सेज ऑफ लॉ से, या फिर ओनरशिप से, पोजीशन से, राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड है ना, तो इसमें एक इजी आप ट्रिक लगा सकते हैं कि नोट डाउन तो आपको करने ही है, वो आपको समझ में भी आने लगेगा अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे कि कुछ पर्टिकुलर राइटर्स नहीं बोला होगा, जैसे ओनरशिप के बारे में 3-4 राइटर्स नहीं बोला होगा, या राइट्स के बारे में 5-7 राइटर्स नहीं बोला होगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसी तरीके से पर्सनालिटी के बारे में भी 2-4 5, जैसे सेविनी है, कैल्सन है, सेलमंड है, तो इनको ही आपको याद कर लेना है, ताकि एक आपकी मोटी मोटी समझ डेवलप हो जाएगी और आंसर करना इजी हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई नीड टू गिव एडवाइस एज एडवाइस। सो जो कि इंपॉर्टेंट था, बाकी क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। Another very straightforward question from IPC, जिसमें I don't think I need to explain anything, but advice which I want to give is that remember the amendments in 2018, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आईपीसी आते ही आपको एक चीज कर लेनी है, कोई भी प्रोविजन है तो बीएनएस में वो प्रोविजन कहाँ है, और क्या उसमें और नए प्रोविजन, पुराने प्रोविजन में और नए प्रोविजन में कोई डिफरेंस है? दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू चेक। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन द लाइट ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एंड द आंसर इज फोर्थ, दैट द अमेंडमेंट एज हैज फिक्स्ड द एज फॉर कंसेंचुअल सेक्स एज 18 ईयर्स। ठीक है। सो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन, पहला ऑप्शन तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी, और चौथे में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी। तो ये वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें समझाने वाला एज सच कुछ नहीं है, तो वी विल बी टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर इम्पोर्टेंट केसेस फ्रॉम द लॉ ऑफ थॉट, और लॉ ऑफ थॉट तो आपको पूरा ही पता है कि इट स्टैंड्स ऑन द केस लॉ लॉज ओनली। ठीक है, इट इज फ्रॉम कॉमन लॉ एंड स्टेट्स स्टैंड्स ऑन केस लॉ। सो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज की लिस्ट बनानी ही है, क्योंकि ये खड़ा ही उसी पे है। तो बट इस क्वेश्चन में आई विल ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट इप्सा लेकिटोर, जो कि बहुत ही सरल डॉक्ट्राइन है और ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभगति वाला। ये आपको याद होना ही चाहिए। इस केस में क्या होता है कि क्लॉक टावर था जो कोलैप्स हो जाता है, जिससे काफी लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो अब ये केस जब कोर्ट में जाता है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमी होती है, और कोर्ट इसमें इस डॉक्ट्राइन का हवाला देते हुए बोलता है कि भाई थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एक क्लॉक टावर पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, तो इसमें अब किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है साबित करने के लिए कि आपकी नेग्लिजेंस थी। ठीक है, क्योंकि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर ही गई, तो अब उसमें समझाने लायक या एविडेंस देने की कोई किसी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद चीख 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 के बोल रही है कि यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी कमी थी। सो आई होप ये तो बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द टू केसेस, वेरी वेरी, वैसे तो सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं, आपको जितने लिखे हैं सब पढ़ने हैं, बट ये दो केसेस रिलेटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, री पोजरिस और वेगन माउंट केस। ठीक है, एक डील करता है द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट से इन डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो ये इसमें काफी सारे टफ वर्ड्स आ रहे हैं, तो नो नीड टू वरी, आई विल एक्सप्लेन। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट क्या है? ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या है? तो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस उसको कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी रिमोट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे डैमेज देना है। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी ने अपने घर में जलता हुआ एक दिया छोड़ गया, जैसे पुराने टाइम में दिया या चिराग हुआ करते थे, वो जलता हुआ छोड़ दिया। अब वो कपड़ों के पास रखा हुआ था, कपड़ों ने आग पकड़ ली, अब उसकी नेग्लिजेंस की वजह से पूरे घर में आग लग गई। ठीक है, तो वो तो सिर्फ दिया छोड़ कर गया था और घर में पूरी आग लग गई, तो ये क्या है? ये रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है। ठीक है, डायरेक्टली दिए ने पूरे घर में आग नहीं लगा दी,
दिया पहले कपड़ा टंगे हुए थे, उसके बाद दिया जलता छोड़ गया, कपड़ा दिए से टकराया, उसने आग पकड़ी, उसके बराबर में कोई और चीज रखी थी, फिर उसने आग पकड़ी, करते 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 पूरे घर में आग लग गई। तो ये क्या है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है, कि हम चेक करेंगे कि दिया जलाने से ये नेग्लिजेंस हुआ है या डैमेजेस हुए हैं कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए दो टेस्ट थे। पहला है आपका क्या नाम है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस वाला टेस्ट, ठीक है, जो कि वेगन माउंट में दिया गया था। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है, कि हम ये चेक नहीं करेंगे कितने रिमोट थे। अगर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो देन वी कैन ट्राई दैट पर्सन और ही विल बी लायबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में दिया रखा हुआ है, उससे कपड़े जले, कपड़ों से बराबर वाला घर जला, उससे बराबर वाला घर जला, फिर उससे एक और घर जल गया, तो हम ये चेक नहीं करेंगे कि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस दिए के जलने से 3 घर जल गए, तो हम उसको सबके लिए लायबल कर देंगे। बट लेटर ऑन क्या हुआ, एक अनदर टेस्ट हमने डिजाइन किया, दैट इज द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट। ठीक है, इसमें क्या है कि हम सिर्फ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे क्या इतने से इतनी बड़ी चीज होनी रीजनेबल है या नहीं, और उतने ही रीजनेबल पार्ट के लिए ही उसको हम लायबल लायबल ठहराएंगे। जैसे कि ऐसा नहीं है कि ए की वजह से बी हुआ, बी की वजह से सी हुआ, सी की वजह से डी हुआ, डी की वजह से ई हुआ, होता गया 7-8 उसमें वो चीजें हो गई, तो हम सबके लिए लायबल कर दे, नहीं। हम ये देखेंगे कि बीच में कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो रीजनेबल फॉरसाइट में नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब मान लो एक आदमी दिया जलाया छोड़ गया, ठीक है, घर में कपड़ों से आग लग गई, उससे घर में आग लग गई, तो ये चीज तो चलो समझ में आ रही है कि डायरेक्ट है, ठीक है, उसके नेग्लिजेंट एक्ट था तो डैमेजेस हो गए। बट बराबर वाले घर वाले ने केरोसिन का पूरा एक पीपा रख रखा था छत के ऊपर। अब उस बंदे को, या कोई भी एक रीजनेबल बंदा जो है, कोई भी रीजनेबल बंदा इस चीज को तो नहीं सोच सकता कि वहां पर कोई पीपा रखा होगा उससे भी आग लग जाएगी, ठीक है। पर पीपा रखा था तो बराबर वाले घर में भी आग लग गई। तो अब ये क्या हो गया, ये रीजनेबल फॉरसाइट हम देखेंगे कि भाई वो पीपा तो कोई भी अज्यूम नहीं कर सकता ना कि एक पीपा छत पे रखा होगा ऑयल से भरा हुआ जिससे आग लग जाएगी। तो दिस इज वेयर द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट केम, कि उतनी ही चीज के लिए उसको लायबल ठहराएंगे जितनी एक रीजनेबल मैन फोरसाइट या सोच सकता हो, या उसको लगे कि हाँ भाई ये तो पॉसिबल है। दिया अगर आप कपड़ों के पास रख के जलाकर गए हो, अनअटेंडेड गए हो, तो ये तो रीजनेबल फोरसाइट में है कि उससे आग लग सकती है। बट छत के ऊपर कोई पीपा रखा हुआ है उससे आग लग जाएगी, तो ये रीजनेबल नहीं है। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनेबल काम करेगा। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस अगर होता तो उस पीपे को भी कवर कर लिया जाता, ठीक है। आई होप आई हैव मेड both concept and cases very clear. So we will be taking the next question. Okay, this is the question from Consumer Protection Act 2019, but ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप एक जनरल लीगल रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 talks about direct selling, e-commerce and electronic service provider, which is true. And the third option is also true. Consumer Protection Act 1986 did not provide about this. भाई 1986 में क्या ई कॉमर्स था, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर था भी, अगर थोड़ा बहुत रहा भी होगा, वैसे ई कॉमर्स तो नहीं होगा बिल्कुल ही, बट इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंटरनेट होगा भी, तो कितना होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन मोर। तो ऐसे आप इजीली रिड्यूस करके इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कंपटीशन एक्ट 2022, और ये पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है आपने कंपटीशन एक्ट 2022 2002 सॉरी पूरा ही पढ़ा हो। वेरी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग या लीगल कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ कार्टेल, व्हाट इज नॉट नेसेसरी? देयर शुड बी एन एग्रीमेंट व्हिच इज नेसेसरी। इट शुड बी एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, यस ऑफ कोर्स। थर्ड, द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू लिमिट कंट्रोल, वर्ड कार्टेल यूज हो रहा है, जाहिर सी बात है, लिमिट कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ अ ट्रेड, ये होगा। तो यह तीनों करेक्ट है भाई। तो चौथा पढ़ो, कार्टेल्स आर वेरी गुड फॉर कंपटीशन, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, और इसका कंपटीशन एक्ट से क्या लेना देना, ठीक है। तो द आंसर तो ये तो बहुत ही ज्यादा अटपटा टाइप का ऑप्शन है चौथा। तो ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग या फिर कॉमन सेंस हमें बता देगा कि द ऑप्शन इज 4। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इस पे मैं क्वेश्चन तो क्या ही बताऊंगा, पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी? इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और एजेंट्स डेथ, ये दोनों हैं। डिवोकेशन भी है, बट जनरल लियान नहीं है। जनरल लियान एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है।
एजेंसी क्या होती है? एजेंसी आप समझ लीजिए एक सिंपल टर्म्स में कि एजेंसी एजेंट से निकला है, मतलब आपने किसी बंदे को हायर कर रखा है किसी काम को करने के लिए, तो देन ही विल बी योर एजेंट। फॉर एग्जांपल आपने अपनी आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो आपने डिफरेंट एजेंट्स चूज कर रखे हैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सारे काम खुद से नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। अब इसमें एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ, जो कि मैं पहले भी रिट्रीट कर चुका हूँ कई बार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कम 75% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी एंड एजेंसी इज आल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हिच यू शुड रीड। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज आल्सो अ हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट दिस इज डेफिनेटली इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है आपको एटलीस्ट। एजेंसी सेक्शन 201 से लेके शायद 210 तक है ये मेंशन, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा बेलमेंट, इंडेमनिटी, प्लेज, गारंटी और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो आप थोड़े से गो थ्रू कर लेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हैविंग सेड दैट आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आईपीसी, जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो मेरे को सिर्फ एडवाइस देनी है, जो कि मैं बार बार दे रहा हूँ कि बीएनएस के कॉन्सेप्ट सेक्शंस पता होने चाहिए। डायरेक्टली प्रोविजियो पूछ लिया जाए और आप आईपीसी की जगह अगर बीएनएस लिखा होगा, तो आपको सिर्फ वॉलंटरली ये बताना है कि बीएनएस में वॉलंटरली कहाँ डिफाइन है, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। डेफिनेशन क्लॉज डेफिनेटली हर ही एक्ट का, चाहे वो माइनर एक्ट हो चाहे वो मेजर एक्ट का हो, वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो इसमें ये बात तो बोलने की जरूरत मेरे को है ही नहीं, क्योंकि दिस इज तो ऑलरेडी अ मेजर एक्ट। ठीक है, तो हैविंग साइड दिस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि क्रोनोलॉजिकली जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं हार्ड बोलता हूँ, बट ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है क्योंकि ये सारे जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, 2009 से शुरू होकर 2013 में सुरेश कौशल वाला केस कई बार पूछा गया है, फिर 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच इज रिलेटेड टू द थर्ड जेंडर status. So these all are cases are related to the third gender and section 377 of the Indian Penal Code. तो इसलिए क्योंकि ये क्रोनोलॉजी इसका इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वरना ये हार्ट की कैटेगरी में फॉल कर जाता। ठीक है, तो जरूरी नहीं था आपको क्रोनोलॉजी इसकी पता हो, बट क्योंकि ये पर्टिकुलर डिबेट, ये पूरी की पूरी एक डिबेट है, डिस्कोर्स है, जो कि ईयर वाइज डेवलप हुई है एंड रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुई है, और ऑलमोस्ट हर जुडिशियल एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। तो इसलिए इसकी क्रोनोलॉजी याद करना और याद होना ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस इज द एडवाइस विच आई वांट टू गिव। बाकी एक्सप्लेनेशन इज देयर, सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। Okay, this is the question from company law I think, and this is out of blue question। ठीक है, तो ज्यादा डीप में तो नहीं, हालांकि ये सारी की सारी बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट रिगार्ड व्हेन इट कम्स टू द थिंग दैट हाउ मच क्वेश्चंस इज आस्क्ड फ्रॉम द कंपनी लॉ। सो इट इज अ वेरी माइनर एक्ट, उसमें से भी एक बहुत ये माइनर एक्ट में से भी आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है। तो just go through the explanation and write it, so that if it comes in the coming future exam, so you can टैकल दिस क्वेश्चन। बट इसके अलावा कोई ज्यादा एडवाइस है नहीं, रटने वाली चीज है, तो एक बार नोट्स बना लेना बस। ओके, दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन मैं चारों डॉक्ट्राइन्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द क्वेश्चन इज एवरी पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। तो ये डॉक्ट्राइन है होल्डिंग आउट। ये होल्डिंग आउट वर्ड से समझ में आ रहा है कि आप एक साथ खड़े हैं। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर, फॉर एग्जांपल मान लो 3 पार्टनर है किसी फर्म के, और उसने बिजनेस रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म कोई भी डिसीजन अगर मेकिंग की है, ठीक है, तो अब उसमें नफा हो या नुकसान हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो बाकी दो भी वैसे ही लायबिल होंगे, जैसे एक पार्टनर उनके बेसिस पे कोई भी डिसीजन ले सकता है, या तीनों पार्टनर एक दूसरे के बेसिस पे व्हेन इट कम्स टू द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, और फिर वो तीनों के लिए प्रॉफिट के लिए भी लायबिल हैं और लॉस के लिए भी लायबिल है। ठीक है, अगर कोई पेनल्टी पड़ेगी तो तीनों पे ही पड़ेगी। ये नहीं बोला जा सकता कि नहीं इस पर्टिकुलर बंदे ने ये डिसीजन लिया था तो वी आर नॉट लायबिल। इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, बिकॉज देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, यू सिंक एंड स्विम टुगेदर। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत इजी डॉक्ट्राइन है। अभी हमने पहले डिस्कस किया था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो मैंने डिटेल में बताया था, जिसमें एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, मगर आपने किसी की अगर कोई चीज का
बेनिफिट ले लिया है, तो वो आप लायबिल हो उसको पे करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट ने, किसी ने दूध मंगवाया फर्स्ट फ्लोर पे, वो धोखे से दे गया सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर वाले ने दूध लेके उसको यूज कर लिया। अब वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो मंगवाया ही नहीं था दूध। अगर आपने उसको यूज कर लिया है तो यू विल बी लायबल टू गिव अ पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी उसकी कॉस्ट थी। तो दिस इज व्हाट डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल इज बेसिकली इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बेसिकली एविडेंस की डॉक्ट्राइन है या फिर एविडेंस लॉ की डॉक्ट्राइन है, जिसमें अगर आपने कोई फैक्ट को असर्ट कर दिया है तो फिर यू कैन नॉट टेक बैक दैट आई हैव नॉट सेड अबाउट दिस फैक्ट। अगर आपने उसको, फिर आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। लास्टली डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये बेसिकली बताती है कि किसी भी लॉ को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रिंसिपल है कि यहाँ पर हम राइट्स को और स्टेट के एक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली बैलेंसिंग से रिलेटेड है, राइट्स और ड्यूटीज की। ठीक है, कि अगर फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, तो फिर स्टेट के पास भी पावर है, स्टेट की भी ड्यूटी है कि उस राइट को एक्सरसाइज करने में करने दे। जितने भी सिटीजन्स हैं उनको उसमें ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। जस्टिस है, मतलब जब तक कोई रीजनेबल हिंड्रेंस नहीं है तो वो तो अलाउ है। जैसे कि आर्टिकल 19(1) के लिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 से क्लॉज 2 में। So this kind of things are allowed, but this is what the doctrine of proportionality की जितनी राइट है उतनी ही ड्यूटी असर्ट होगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी दोनों चीजों में हमें बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना है बेसिकली। ठीक है, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फ्रॉम द पर्सनल लॉज। ठीक है, हिंदू एंड अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बेसिकली, या फिर पर्सनल लॉज का भी मान सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ये एक जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा jurisprudence से रिलेटेड है टू द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। व्हेन एन अनमैरिड वुमन adopts a child and subsequently marries, the person she subsequently marries shall be adoptive father, stepfather, natural father, either one or two। अब आंसर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन आप हमने समझ लिया कि अगर कोई अनमैरिड विमेन ने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद उसने शादी कर ली, तो वो फादर जो है, जो जो जिस बंदे से उसने शादी की है, वो किस प्रकार का बाप होगा उस अडॉप्टिव चाइल्ड का। तो लॉ एंड द जुरिस्प्रूडेंस इज वेरी क्लियर कि वो उसका स्टेप फादर होगा, अडॉप्टिव फादर नहीं होगा। क्योंकि अडॉप्टिव फादर वो कब होता, जब दोनों की शादी पहले से हुई होती और फिर दोनों ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया होता, तो इन दैट केस वो अडॉप्टिव फादर होता। और ये डिस्क्रिमिनेशन डिस्टिंक्शन क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि अडॉप्टिव फादर्स के राइट्स अलग होते हैं और स्टेप फादर्स के राइट अलग होते हैं। अडॉप्टिव जो पेरेंट्स हैं उनसे वो अडॉप्टेड जो चाइल्ड है वो पूरी तरह वैसे ही होता है जैसे कि नेचुरल आयर होता है उनका, यानी कि उसकी जो भी इनहेरिटेंस में चीजें बनेंगी वो सारी उसी हिसाब से बनेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसने एक डिस्टिंक्शन बताई है कि अडॉप्टिव फादर और स्टेप फादर के बीच में क्या डिस्टिंक्शन होती है, और बहुत ही प्यारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। सो विद दिस वी विल बी, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस वेरी क्लियरली और आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया हो। सो नाउ वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन। ये तो आपका रिमेम्बरेंस वाला क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू द वाइफ अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2। इसमें एक्स्ट्रा ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स टू वाइफ दे रखे हैं। इस सेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये ओनली डील्स विद द ग्राउंड्स फॉर वाइफ ओनली। ठीक है, ये दोनों के ग्राउंड से डील नहीं करता है। तो इसमें क्या क्या है, प्री बाइगेमस मैरिज ऑफ द हस्बैंड है, रेपुडिशन ऑफ द मैरिज है। ठीक है, रेपुडिएट अगर मैरिज को कर दिया है, रेपुडिएट। एंड द थर्ड वन इज cruelty by the husband। cruelty by the husband is a ground of divorce but not mentioned under section 13(2)। ठीक है, हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, अगर ये चीजें हैं तो ये स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ग्राउंड है। तो क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, बट ये एक्स्ट्रा ग्राउंड है जो कि वुमेन को मिल रखे हैं। तो दिस इज नॉट मेंशन अंडर 13 सब क्लॉज 2। बाकी इसका स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन बराबर में है ही। सो आई डोंट think I need to explain anything. So we will be taking the next question. Okay, the question here is that the children born out of a void Hindu marriage are in the eyes of law. So this is very easy question, which is expressly mentioned in the under the Hindu Marriage Act that they are legitimate, but having the right of inheritance limited to their parents' property only। तो ये कि बहुत ही एक important point है जो कि हमें मार्क करना है। इसका explanation ये है
कि जो भी आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटिमेट होंगे अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब वॉइड मैरिजेस में, जैसे कि मैरिज वॉइड है बट बच्चे हो गए, तो बच्चे तो लेजिटिमेट हैं, बट दे कैन नॉट बी अ को पार्टनरी इन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब वो अपनी दादा लाइफ प्रॉपर्टी में से उनको कुछ नहीं मिलेगा, को पार्टनरी नहीं होंगे। दे कैन ओनली इनहेरिट फ्रॉम वॉट एवर इज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स आर। उनकी जो भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसमें ही उनका हिस्सा होगा। या तो उन जो वो प्रॉपर्टी उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हो पेरेंट्स को, या फिर उन्होंने खुद कमाई हो, तो सिर्फ उसी में वो इनहेरिट कर सकते हैं। वो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी भी प्रॉपर्टी में से इनहेरिट नहीं कर सकते। सो आई थिंक, आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर। सो वी विल बी टेकिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the question which is related to the restitution of conjugal rights. बहुत ही simple और easy question है। That this the concept of restitution of conjugal rights has developed in has its origination from the Jewish law. So this is the concept which has been taken into the Hindu law from the Jewish law. So with this, we are going to wrap up this video. This is the part one of 2022 PYQs. I hope you have liked the video, the explanation, the advice, the type of tackling which I have taught you in the video. So, okay, we will be meeting in the next question. Till then, go and solve more PYQs, because revision is the key to remembrance. So, we will be meeting in the next video.